Hello dear students, good evening everyone. This is the class 11th lecture, and in this lecture today we will discuss about some numericals that is very important for your examination point of view and also for knowledge point of view, and the numerical that is based on the topic that I just taught in previous lectures. And here first numerical, that is multiple choice type question based on distance and displacement concept. So just see what is the concept of numerical. A body moves along a circular track of radius r. Radius here are given. So diagram of this one. This is a circular track of radius r. O to A. Radius of this circular track is r. And further what is given? It starts from one end. It means starting from point A. Body just start movement from point A of a diameter. Just make this one in such a way that this is diameter. Here AB is the diameter. AB is the diameter. If this one R, then this one will also R. So diameter, length what? 2R. I will say that a relationship well known, radius is equal to diameter upon 2 or diameter is equal to twice of radius. क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आ जाएगा, बस केवल ध्यान से आप सुनते रहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक. मैंने कहा कि सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, और डायमीटर ए बी, डायमीटर की एक इंच से स्टार्ट कर रहा है, बॉडी एक इंच से स्टार्ट कर रहा है और कर क्या रहा है, कितना मोशन कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक है, कंप्लीट्स वन इंड एंड हाफ रिवॉल्यूशन. मतलब ए से स्टार्ट कर रहा है तो ए पर गया, फिर कहाँ आ गया बी पर, तो 1.5 रिवॉल्यूशन आफ्टर. कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या करना है, फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है. तो वन कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं 2 पाई आर. क्या कहते हैं 2 पाई आर. फॉर वन कंप्लीट राउंड, फॉर वन कंप्लीट राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. और हाफ राउंड एंड ए हाफ राउंड distance is equal to pi r. So total distance is equal to 2 pi r plus pi r is equal to 3 pi r. Clear? And when the body just starting from A and after one round reached at A further and reached at B, then displacement is equal to 2r. How displacement is equal to r? Because initial value A and final value B, the distance between initial and final value is what? That is the displacement. So we have to calculate what? Ratio of distance and displacement. Very easy concept. Just see what is the value of ratio of distance and displacement. Distance here total, that is 3 pi r, displacement what 2r. Then ratio is equal to, very simple concept. Let's see. Ratio is equal to total distance here 3 pi r and displacement 2r. So r are cancelled, so equal to what, 3 pi by 2. It means fourth option is correct. So just note down, very simple. Just after solving first, the second one is, just see second problem. A physical quantity x is calculated from this one formula, x is equal to ab square upon root c.
Calculate percentage error in x when percentage error in measuring a, b and c are 4, 2 and 3. I think here will be what percentage error in x, because multiple choice type question है. So what percentage error in x, percentage error x में क्या होगा, यहाँ 4 वैल्यू गिवन है, 8%, 9.5%, 10% एंड 13%. तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन सही होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करके क्लियर करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. तो देखिए बहुत सिंपल केस है. जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन पूछे तो उसको सॉल्व करने का मेथड समझ लीजिए, बहुत इजी मेथड है. परसेंटेज एरर इन एक्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे. सो डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस 2 डेल बी अपॉन बी प्लस स्क्वायर रूट में होता है 1/2. क्या होता है 1/2 डेल सी अपॉन सी. क्लियर. अब इसके बाद परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए में परसेंटेज एरर क्या दिया है, ए में परसेंटेज एरर दैट इज 4% प्लस बी में 2%. इसके पहले भी 2 है तो 2 इंटू 2%, फिर 1/2 सी में परसेंटेज एरर दैट इज 3%. इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस के साथ देखिए यहाँ पे 4% प्लस 2 2 जा 4% और 3/2 कितना हो जाएगा 1.5%. क्लियर. तो 4 4 8 एंड 1 9.5% क्या होगा इसका रिजल्ट होगा. इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज एरर पे बेस्ड, तो उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे. क्लियर है. तो 9.5% कौन सा ऑप्शन है, बी. तो बी क्या करेंगे हम लोग, टिक मार देंगे. नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन. इसके बाद थर्ड बता रहे हैं. देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल केस है. द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कंटिन्यूटी t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी से आता है. इसको मैं लिख दे रहा हूँ. ये फार्मूला आता कहाँ से है, बेसिकली ये फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी है. इसको जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी को ट्रांसफर कर दिए, इतना हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर. इसी फार्मूले पे यहाँ पे न्यूमेरिकल बना दिया गया है. और न्यूमेरिकल है क्या, परसेंटेज एरर देखिए निकालने के लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो उसको हम लोग एरर में क्या करते हैं, फ्रैक्शन एरर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी पावर होता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए है तो डेल ए अपॉन ए कर देंगे. तो अपॉन में अगर यल अंडर रूट में है तो 1/2 अंडर रूट यल को हम लोग 1/2 डेल एल बाई एल कर देंगे. यहाँ टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो 2 डेल टी अपॉन टी कर देंगे. तो परसेंटेज एरर इन टी, देखिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका. परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसके कैलकुलेशन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो डेल एल अपॉन एल प्लस पहले एरर इन जी निकालेंगे. ये एरर जो इन जी है ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है. एरर इन जी प्लस 2 डेल टी अपॉन टी. ऐसे एरर इन जी हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो उसके बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, परसेंटेज एरर. क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन जी. अब डेल में देखिए परसेंटेज लेंथ में कितना दिया है, परसेंटेज लेंथ में परसेंटेज है कितना 1, और टाइम में कितना है 2%. इसका हो जाएगा 1% और प्लस पहले ही 2 है तो 2 इंटू 2%, तो 1% प्लस 2 जा 4%. कितना हो गया, सब कैलकुलेट कर लीजिए, आ गया 5%. तो 5% कोई ऑप्शन दिया है इसमें, यस नंबर सी ऑप्शन है. ठीक. तो सी मतलब थर्ड पोजीशन में जो ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. नोट कर लीजिए सिंपल थर्ड. इसके बाद नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ऐसा आपको एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं जल्दी. तो ये कॉन्सेप्ट
कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है, गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद चार में से जो ऑप्शन क्या होगा, मैच करेगा, उसी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है ये, एक बार केवल ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा सोल्यूशन क्या है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बता रहे हैं, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती क्या है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कि अगर डायमेंशंस को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी भी डायमेंशंस को, तो वो सेम डायमेंशंस के ही फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, ऐड होगा, अदरवाइज चांस इम्पॉसिबल है। कह सकते हैं कि अगर लेंथ है तो वो लेंथ में ही ऐड होगा, कभी लेंथ एरिया में ऐड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लेंथ 2 मीटर है तो एरिया 4 मीटर स्क्वायर है तो ऐड कर देंगे 6 मीटर स्क्वायर होगा, ये पॉसिबल है, कभी नहीं। इट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी व्हेन एवर टेकन देन कैन बी ऐड अप आर सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी का सेम है तभी वो ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेंसिटी में बीटा क्यूब ऐड किया गया है तो श्योर है कि डेंसिटी का डायमेंशंस बीटा क्यूब के डायमेंशंस की क्या होगा, इक्वल होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, बाय होमोजेनिटी, बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है कि इक्वल डायमेंशंस अगर फिजिकल क्वांटिटी का तभी हम ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए तो डेंसिटी डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बीटा क्यूब। तुमको बीटा क्यूब का डायमेंशंस, बीटा क्यूब डायमेंशंस ऑफ बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया m, वॉल्यूम का कितना होता है, l/3, इसको हम लिखते हैं m l/-3। तो हमको बीटा क्या चाहिए, तो क्यूब है यहाँ पे बीटा, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू m l/-3 होल पावर 1/3। 1/3 जब पावर में लग जाता है तो समझिए क्या है, क्यूब रूट है। यहाँ क्या आ जाएगा, m पावर 1/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो l पावर कितना आ जाएगा, -1। ये हो गया बीटा का डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया, बीटा का। अब देखिए ये टोटल जो है वैल्यू, ठीक, डिनोमिनेटर में एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी होगी जो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायमेंशन। तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स डायमेंशन इनटू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। क्लियर। देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। फोर्स का डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का lt-2। बाकी डेंसिटी कितना है अभी निकाले हम लोग, m l/-3 इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, सिंपल है, m यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा, -3 और 1, -3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, इसमें लिख दे रहा हूँ, m पावर 2 l पावर -2 और t पावर -2। तो m पावर 2 t पावर -2 और l पावर भी क्या है, -2 है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए m पावर 2 l पावर -2 t पावर -2, ठीक। और पहला ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीटा इक्वल टू m पावर 1/3 l पावर -1। इट मींस जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, सही है। तो हम लोग क्या किए, करेक्ट ऑप्शन पा गए। तो इस तरह से डायमेंशन बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा उसको हम लोग इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 है क्या कि डायमेंशंस क्या करना है हमको, 1/ε0 μ0।
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पहले जान लीजिए है क्या। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट से रिलेटेड टर्म्स है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वैसे ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक, तो क्लास 12 में आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसका तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी इसको बताने से डाउट ही क्लियर होगा। तो डाउट केवल जो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसको क्लियर हो जाएगा। बाकी डीप कॉन्सेप्ट लेना है तो क्लास 12 का लेक्चर से पढ़ाया जाएगा इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर। और म्यू नॉट तो मैग्नेटिक परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये दोनों दो फार्मूले में यूज होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ एक शॉर्ट में देख लीजिए। जैसे B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट है। तो वैसे ही जैसे एक B का फार्मूला हो गया इसी तरह से होता है F कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो म्यू नॉट ये क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो दोनों क्या है, एक तरह से कह लो कि कांस्टेंट है, तो इसको हमको कांस्टेंट के डायमेंशन निकालना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर्स होता है उसमें एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को बता रहा हूँ, उसको हमेशा दिमाग में बैठा रही है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू होता है 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये C की वैल्यू होती है। वैसे C है क्या, ये जो C है ये स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें केवल डायमेंशन से मतलब है, और डायमेंशन किसका चाहिए, 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट कब आएगा, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड। क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा क्या, देखिए C स्क्वायर इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं डायमेंशन किसका, 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का। हेंस डायमेंशंस ऑफ 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C स्क्वायर। स्पीड डायमेंशन मालूम है, LT-1 होता है। LT-1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये आएगा कितना, जैसे ही LT-1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा कितना, वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए सिंपल वे में, डायमेंशंस ऑफ 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू L/2 T⁻²। यहाँ पे m है नहीं, m नहीं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं m⁻0। क्या कर सकते हैं, m⁻0 L/2 T⁻²। डायमेंशंस क्लियर हो गया। कौन सा है इसमें, L/2 T⁻², बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा डायमेंशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा, अगर ट्राई करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, जितने भी टर्म्स आप लोग पढ़ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर और एरर्स के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में वो उसको अपना कॉन्सेप्ट जो डाउट है उसको क्या कर सकता है, बता सकता है कि सर हमको इसमें डाउट है। तो उसका जो भी डाउट होगा वो व्हाट्सएप नंबर पे मैं उसको क्या करूँगा, उसके डाउट को क्लियर कर दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड डे।